السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. کہ آپ نے کبھی صرف اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہا ہے؟ نہ کوئی کال، نہ کوئی میسیج اور نہ کوئی ڈیڈ لائن، بس آپ کا ساتھ اور کچھ خاموش سے لمحے. کبھی سوچا آپ نے کیا ہوتا ہے جب ہم فون بند کر دیتے ہیں اور زندگی کو آہستہ کر دیتے ہیں؟ آج کی شام صرف ایک چیز کے لیے تھی. مجھے ہونا تھا اپنے ساتھ ریکنیکٹ ہونا اپنے ساتھ، نیچر کے ساتھ، اور کچھ وقت گزارنا اپنے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، اچھے سے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس ولاگ میں آپ دیکھیں گے کیا. اس ولاگ میں دیکھیں گے کہ میں ایک مرینا پر آئی ہوں، کچھ سنیکس میں گھر سے لے کر آئی ہوں، اور 2 ڈریسز میں نے ٹھیک کرنے، ان کی سلائی میں کروں گی، اور پھر ہم اس ولاگ کو اینڈ کریں گے خوبصورت سی واک کے ساتھ، اور آپ سراؤنڈنگس دیکھ سکیں گے. اس جگہ کے ساتھ میری بہت ساری یادیں ہیں. یہاں پہ میں بہت دفعہ آئی ہوں. کبھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، جیسے میں نے آج سلائی کرنی ہے تو میں یہاں پہ آ جاتی ہوں. بہت اچھی شام گزرتی ہے. بہت بار میں گھر سے بریانی بنا کے لائی ہوں جو یہاں پہ آ کے کھائیے. اچار کے ساتھ پراٹھا بھی کھایا ہوا ہے. اور کبھی مثال کے طور پہ واک کرنی ہو یا کوئی کتاب پڑھنی ہو، اور بہت دفعہ اگر میں نے نوٹس بنانے ہو تو اپنی کاپی پینسل لے کر میں نے بہت ساری شامیں یہاں پہ گزاری ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے، ویری پیسفل انوائرمنٹ. میں اب یہاں پر چھوٹا سا ایک سنیک سیٹ اپ لگا رہی ہوں. کچھ سمپل سی چیزیں جو ہیلدی بھی ہیں اور کیری کرنا بھی آسان ہوتی ہیں. یہاں پر میں نے نٹس رکھے ہیں، اسٹرابیریز رکھی ہیں. دن میں ایک دفعہ میں نے یوگرٹ ضرور کھانا ہوتا ہے، دہی. اس کے اندر میں ڈالتی ہوں چیا سیڈس، اسپغول کا چھلکا، اور کوئی بھی فروٹ، چاہے وہ ناشپاتی ہو جائے، کیلا ہو جائے، سیب ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فائبر اور لانگ لاسٹنگ انرجی کے لیے ایک پرفیکٹ کمبینیشن ہے، اور یہ ڈائجسشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. چیا سیڈس کو کیونکہ ریڈی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سویل ہونے میں، تو میں اس کو پہلے ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر یہ ریڈی ہوتا ہے کھانے کے لیے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، فون نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا، کام کا پریشر، ہپڑ دپڑ، کہ خود سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا. کبھی کبھی اکیلے پن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لونلی ہیں، بلکہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی تھاٹس کو سمجھتے ہیں. ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ تھوڑا وقت اکیلے گزارنا سٹریس کو کم کرتا ہے، کریٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، اور ایموشنل بیلنس کو برقرار رکھتا ہے. یہ جگہ میری ہمیشہ سے فیوریٹ جگہ ہے. اس جگہ پر ایک عجیب سی خاموشی ہے جو دل کو چین دیتی ہے. نہ کوئی ٹریفک کا شور اور نہ کوئی فون کی بے چینی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خاموشی ہے نا، اس کی بھی ایک اپنی زبان ہے. سائلنس ہیز اٹس اون لینگویج. اور یہ سمجھ تب آتی ہے جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، جب آپ تھوڑا رک جاتے ہیں، سلو ہو جاتے ہیں، فون کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور صرف اپنی ارد گرد کی آوازوں کو سنتے ہیں، اپنی سراؤنڈنگز کو محسوس کرتے ہیں جو نیچر سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جس سپیڈ سے یہ دنیا جا رہی ہے، اور سالوں کے سال گزرے ہیں، سال اس طرح گزرے ہیں جس طرح مہینے گزرتے ہیں، ہم ایسی تیزی میں جکڑ گئے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے سلو ڈاؤن ہونے کے لیے. ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ فون کے نوٹیفیکیشنز، میسیجز اور سوشل میڈیا کا شور ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم کچھ اور کریں. میں یہاں ڈنمارک کے ایک مرینا پر ہوں جسے ڈینش میں لسٹبول ہاؤن کہتے ہیں. سمپل ورڈز میں کہیں تو ایک چھوٹی سی ہاربر ہے جہاں پر لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بوٹس یا یاٹ پارک کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے گاڑیوں کے لیے پارکنگ پلیس ہوتی ہے، اسی طرح یہ ان چھوٹی کشتیوں کے لیے بھی یہ پارکنگ پلیس ہے. لیکن یہ جگہ بہت خوبصورت اور پیسفل ہے. سمندر کا ویو ہوتا ہے، ہلکی ہوا ہوتی ہے، اور پانی میں ہلکا ہلکا ہلتی ہوئی کشتیاں ایک الگ ہی مزہ دیتی ہیں. مرینا میں صرف بوٹس نہیں ہوتی، یہاں چھوٹے چھوٹے فیول اسٹیشنز بھی ہوتے ہیں جہاں کشتیوں کو فیول ملتا ہے. ساتھ ہی چھوٹے کیفیز ہوتے ہیں، ریسٹورانٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہاں پر کافی یا لنچ انجوائے کرتے ہیں. یہاں پہ کاٹیجز بنے ہیں جو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. آپ ویکینڈ منا سکتے ہیں یہاں پہ.
कुछ मरीनास पे छोटी शॉप्स होती हैं, वॉकिंग पाथ्स होते हैं। तो ये जगह सिर्फ बोट ओनर्स के लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए भी परफेक्ट जगह है जो यहाँ पर आकर वॉक करना चाहें या रिलैक्स होना चाहें। हवा में एक नमी है और पानी पर सूरज का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो इतना खूबसूरत इफ़ेक्ट देता है, ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे डायमंड्स समंदर ने बिखेर दिए हैं। मुझे हाबा के सूरन पाथ के ऊपर वॉक करने का हमेशा बड़ा मज़ा आया। हर तरफ छोटी छोटी बोट्स होती हैं, कुछ एंकर्ड होती हैं और कुछ हल्की हल्की लहरों के साथ हिल रही होती हैं। हर बोट की अपनी कहानी होती है। कोई फ़िशिंग बोट होती है जो रोज़ाना समंदर में जाती है और कुछ लग्जरी याट होती हैं जो सिर्फ एडवेंचर के लिए वीकेंड्स पे निकलती हैं। लेकिन आप देखें ना कि चाहे ये छोटी सी फ़िशिंग बोट हो या फिर एक लग्जरी याट, हर बोट यहाँ से निकलने से पहले रुकती है, ठहरती है, अपने एंकर्स को मजबूत करती है, अपने किनारे पे खड़ी रहती है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से है। बिफोर वी हेड आउट ऑन बिग जर्नीज़, वी ऑल्सो नीड टू हार्बर अ प्लेस टू पॉज एंड गैदर स्ट्रेंथ। बहुत ज़रूरी है हम किनारे पे खड़े होकर कुछ देर रुक जाएं, सोचें, अपने आप को वक्त दें। ये दुनिया इतनी फास्ट है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि कभी स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है। टेकिंग अ ब्रेक, जैसे मैंने आज ब्रेक ली, इज़ नॉट वेस्टिंग योर टाइम, इट्स एक्चुअली रीचार्जिंग योर सोल। चलें जी जनाब, यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपडेट दे देती हूँ कि मैंने एक राउंड लगाया हाबा का और वापस आ गई हूँ अपनी जगह पे। और ये है चॉकलेट मिल्क जो मैं घर से लेकर आई हूँ। कहने को ये नो शुगर है और मैं आकर बैठ गई हूँ। मैं लेकर आई हूँ पाकिस्तान से 2 जोड़े सिलवा के दर्जी से, और आपको तो दर्जियों का बिल्कुल मालूम है, वो कोई जोड़ा सी ही नहीं सकते गलती के बगैर। ये जो ड्रेस है ये अपनी जो लेंथ उसको बताई गई थी उससे 3-3 इंच लंबा था। वैसे तो मेरे पास सिलाई मशीन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो नेट है इसको शेंटले कहते हैं। इसकी सिलाई करनी मशीन के नीचे मुश्किल है, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसकी लेड़ी कर दूँ जिसको कि हेमिंग कहते हैं। तो मैं ये 2 जोड़े ले आई हूँ जिसको मैंने 3-3 इंच तकरीबन नीचे से शॉर्ट करना है। और क्योंकि जल्द ही आगे कुछ वेडिंग फंक्शंस आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं अपना ड्रेस तैयार कर दूँ ताकि मैं उनमें से एक फंक्शन के ऊपर ये मैक्सी पहन सकूँ। वैसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है कि जब भी पाकिस्तान में दर्जी को कपड़े दिए जाएँ तो कोई ना कोई गलती ज़रूर निकलती है। कभी लेंथ का फ़र्क पड़ गया है, कभी फिटिंग ठीक नहीं है। हालांकि मेजरमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट दी होती हैं, लेकिन जब बाद में आप मेजरमेंट्स देखते हैं तो कुछ का कुछ होता है। तो क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या मुझे ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा में कभी भी कपड़ा सही नहीं सिलता, वही जोड़ा आपको दोबारा दर्जी के पास लेके जाना पड़ता है ठीक कराने के लिए। वैसे ये छोटे फिक्सेस और थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स करना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निटिंग या इस तरह बैठ के खामोशी में बैठ के लेडी करना कपड़ों की, ये एक तरह से एक थेरेपी है। सीगल्स एक बहुत ही प्यारा परिंदा है और मैंने देखती हूँ कि हार्बर के ऊपर चिड़ियों का एक छोटा सा ग्रुप उड़ता है। कभी वो बोट्स के ऊपर आके बैठ जाती हैं, कभी पानी के करीब आकर हल्का सा ग्लाइड करती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है कि कितनी कोऑर्डिनेशन है इनमें। और मुझे हंसी भी आती है कि मुझे लगता है जैसे इन चिड़ियों की भी अपनी कहानी है। कोई फिशरमैन के साथ सुबह सुबह समंदर पर गई होती है, कोई पानी के ऊपर फ्री और आज़ाद उड़ती रहती है। तो देयर समथिंग वेरी पीसफुल अबाउट वॉचिंग सीगल्स। ये रिमाइंड कराती हैं कि फ्रीडम डजंट मीन रशिंग, समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट फ्लोटिंग विद द विंड। आज मेरा सारी बात करने का पॉइंट यही है कि इंसान को ज़िंदगी में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना चाहिए। कभी कभी फ़ोन को साइड पे रख देना चाहिए और कभी कभी अपने आप को अंदर देखना चाहिए, झांकना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ओ भाई, आजकल तो पूरी दुनिया आपको अपने मोबाइल के अंदर मिल जाएगी, लेकिन इस दुनिया की हसल बसल से दूर रहना कभी कभी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रेक लें, क्योंकि तभी तो हम अपने दिल के अंदर झांक सकेंगे। अकेलापन आपको ये मौका देता है कि आप अपनी गलतियों को भी एक ठंडी और क्लियर सोच के साथ देख सकें, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शोर शराबे के। समटाइम्स यू नीड साइलेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट योर हार्ट इज़ ट्राइंग टू टेल यू।
मुझे लगता है कि हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे हार्बर मोमेंट्स, ऐसे ठहराव के लम्हे ज़रूर लेने चाहिए, वरना तो हम बस इस दुनिया में दौड़ते रहेंगे बिना ये समझे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिना ये समझे कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। इस तरह जब हम अकेले वक्त गुजारते हैं तो हमें सोचने का मौका मिलता है। योर माइंड फाइनली हैज़ अ स्पेस टू थिंक क्लियरली, और इसी क्लैरिटी में हम अपने पास्ट डिसीजंस को समझ पाते हैं। कभी लगता है काश वो बात ऐसे ना की होती, वैसे की होती, वो स्टेप ऐसे ना लिया होता, वैसे लिया होता, काश कि इतना गुस्सा ना हुए होते हम। और फिर रियलाइज़ होता है कि हमने गलती कहाँ पे की, हमने गुस्से में बिना सोचे समझे किसी को हर्ट क्यों किया। When you're alone and everything is quiet, you finally have the space to ask yourself, क्या वाकई में इतने गुस्से की ज़रूरत थी? क्या वो अल्फाज जो गुस्से में कह दिए, उनके बिना क्या बात समझानी मुश्किल थी? क्या वो डिसीजन जो जल्दी में ले लिया, क्या वो रुक के लिया होता तो क्या बेहतर होता? इसलिए जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं खामोशी में अकेले बैठकर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करती हूँ। हर गलती एक लेसन बन जाती है जब हम उसे ठंडे दिमाग के साथ एनालाइज करते हैं, और शायद इसी प्रोसेस में हम अपने अंदर ज़्यादा जेंटल, ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान बन जाते हैं। चलिए थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूँ। 2 जोड़े, इनमें से मैंने एक किया, मुझे तकरीबन लगे इसको 45 मिनट, क्योंकि ड्रेस का घेर बहुत ज़्यादा था। जो ग्रीन जोड़ा है ये मैं आज तो नहीं मुकम्मल कर पाऊँगी, ये मैं किसी और दिन करूँगी। अलबत्ता ये कि मैंने बैठ के थोड़ी देर सिर्फ ब्रीदिंग की। आपको पता है एक बात का कि समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू इज़ नथिंग एट ऑल, जस्ट ब्रीथ। सिर्फ आंखें बंद करके सांस लें। आंखें बंद करके जब आप सिर्फ सांस के ऊपर तवज्जो देते हैं, सांस पे फोकस रखते हैं, तो वो इट्स जस्ट लाइक प्रेसिंग अ रीसेट बटन फॉर योर माइंड। दिन भर की सोचें, स्ट्रेस, प्लानिंग सब आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाता है। आंखें बंद करके मुझे सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी, दूर से सीगल्स की आवाज़ आ रही थी, और हल्का सा ठंडक का एहसास था। ये छोटे छोटे मोमेंट्स भी हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी बस रुकना, गहरी सांस लेना, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना हीलिंग होता है। यहाँ पर डेनिश कोस्टल लाइफस्टाइल का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा मुझे ये लगता है कि लोग समंदर के पास सिर्फ वक्त गुजारने आते हैं। कोई जल्दी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता। छोटी छोटी बोट्स में लोग फ़िशिंग करते हैं, कभी कभी सिर्फ कॉफ़ी लेकर अपने शिप के डेक पर बैठ जाते हैं और सिर्फ लहरों को देखते रहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमारी ज़िंदगी बिज़ी मार्केट्स, फैमिली गैदरिंग्स और सिटी की हसल बसल में गुजरती है। वहाँ समुंदर के पास बैठने का इतना कल्चर आम नहीं है, और ऑनेस्टली वहाँ शायद इतना वक्त भी नहीं मिलता। डेनिश लोग मुझे एक चीज़ सिखाते हैं कि आपको लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत बड़ा प्लान नहीं चाहिए। यू डोंट ऑलवेज़ नीड अ बिग प्लान टू एंजॉय योर लाइफ। कभी सिर्फ पानी के पास बैठकर हवा महसूस करके भी सुकून मिलता है। हम पाकिस्तानी लोग अक्सर वीकेंड को सिर्फ शॉपिंग, मैकडॉनल्ड्स का खाना, अनहेल्दी फूड, रेस्टोरेंट की आउटिंग में देखते हैं, लेकिन यहाँ वीकेंड कोस्टल वॉक, साइकिलिंग और बोट राइड्स का होता है। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी ये जो तेज़ ज़िंदगी है इसमें थोड़ा सा डेनिश कामनेस अगर लेकर आएँ, थोड़ा सा डेनिश टच लेकर आए, तो ज़िंदगी और भी बैलेंस्ड हो जाएगी। यहाँ पे इजीली आपको क्लीन टॉयलेट्स मिल जाएंगे जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जो प्राइवेट हैं, जहाँ पे बोर्ड साइंस लगे हैं, वहाँ पे आप नहीं जा सके, ना ही आप अपने डॉग को लेके जा सकते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आई वंडर ये आज बंद क्यों है, क्योंकि एक रेस्टोरेंट है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आकर एक जगह बैठ गई। यहाँ पास सामने बहुत खूबसूरत पानी गुजर रहा था, सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और सब कुछ गोल्डन लग रहा था। मुझे लगा ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कभी हम रश में होते हैं तो सनसेट्स मिस कर देते हैं, और जब हम आहिस्ता चलते हैं तो सारे रंग दिखने लगते हैं। याद रखें कि आप जब भी नेचर के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको एक आज़ादी महसूस होगी, एक फ्रीडम महसूस होगी। फ्रीडम हर उस शोर से, उन ओपिनियन से, अ फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्स्टेंट नीड टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी कुछ हद तक मजबूरी भी है, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। हमने अपने बिल्स, अपनी ट्रांजैक्शंस, हर चीज़ अपने फ़ोन के ज़रिए से करनी होती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मोबाइल का, वो ये है कि हम डिस्कनेक्ट होना भूल गए हैं। सोशल मीडिया का स्क्रॉल, हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं। आप मुझे बताएं कि लास्ट टाइम कब था जब आप अकेले बैठे थे, आपने अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया था? वो ऐसा कब था वो लास्ट टाइम जब आपने आसमान को इतने गौर से देखा और उसमें उड़ती हुई एक छोटी सी चिड़िया को
اپنے گھر جاتے دیکھا اپنے بچوں کے پاس. جیسے کہ یہ چڑیا واپس اپنے گھونسلے میں جا رہی ہے، ایسے ہم انسان بھی سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں سکون ملے. ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی فاسٹ پیسڈ لائف جی رہے ہوں، کبھی کبھی بس رکنا، گہری سانس لینا، اپنی غلطیوں کو سمجھنا اور خاموشی کے ساتھ وقت گزارنا، خاموش ہو جانا، خاموش رہنا بہت ضروری ہے زندگی میں. شاید ہر انسان کو اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا ہاربر ڈھونڈنا چاہیے جہاں وہ اپنی روح کو، اپنے آپ کو وقت دے سکے اور اپنی روح کو چارج کر سکیں، تاکہ ہم اپنے زندگی کے سفر کو بہتر طریقے سے کنٹینیو کر سکیں. مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اب میں واپس گھر جا رہی ہوں. آج کا ولاگ یہاں پر ختم ہوتا ہے اسی پیغام کے ساتھ جو میں ہمیشہ دیتی ہوں. اپنا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اپنے رشتوں میں لائل رہیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.